Welcome you all again to my online YouTube tutorial of class 12 mathematics. And as we are discussing about chapter 5 from last few classes, so in this video today we are going to discuss about exercise 5.4 and their concepts. So basically in exercise 5.4 we have to learn about two new functions, that is one is exponential function and then logarithmic function. Though the exponential function somehow we have used, যদিও আমি এক্সপোনেনশিয়াল ফাংশন আগে পিছে ইউজ কৰি আহিছিলোঁ কিন্তু আমি নাজানিছিলোঁ যে তেওঁ সেইটোকে এক্সপোনেনশিয়াল ফাংশন বুলি কয়। বাট দি লগাৰিথমিক ফাংশনছ ইজ ভেৰি নিউ টু ইউ। সো আজিৰ এই ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম সূচকীয় ফলন, দ্যাট মিনছ এক্সপোনেনশিয়াল ফাংশন, এণ্ড ঘাতাংকীয় ফলন, দ্যাট ইজ লগাৰিথমিক ফাংশন। এণ্ড দ্য কনসেপ্ট অফ ঘাতাংক ইজ ভেৰি নিউ, দিছ লগাৰিথমিক. But those who have come from CBSE board, for them this is very new. They have never come across the word logarithm. But those who are from our SEBA board, the students, those who take in class 9 and 10 in a elective subject as advanced mathematics, they have come across the chapter actually logarithm. They have know already about logarithm. But those they are earlier concepts, I don't know how far you can remember. So in this video we are going to learn it from the basics. So, and these are the two functions that we are going to discuss over here, and after that we will find the differentiation of this exponential and logarithmic function. প্রথমতে আমি শিকিম সূচকীয় ফলন কি, ঘাতাংকীয় ফলন কি, তার পিছত আমি আলোচনা কৰিম সিহঁতৰ অবকলনৰ বিষয়ে, the differentiation of the derivative, and then we are going to solve exercise 5.4. And as I already said you, my intention is not to solve your exercise problems, because you google it, you will find the answers. So my basic motive and focus will be on your concepts, building your concepts. So let us start one by one. Now come to exponential function. What is exponential function? সূচকীয় ফলন কি? So for this, as I told you already, I have told you, we have already come across the word, not the word, actually we have come across such kind of functions in our earlier classes also. আমি আগতে সূচকীয় ফলন আমি ব্যৱহাৰ কৰি আহিছোঁ, but we didn't know that this function is actually called the exponential function. So now how it look like, মই যেতিয়া কম তোমালোকক দেখাত কেনেকুৱা ক'বা, এনেকুৱাটো পাই আহিছিল. Suppose anything to the power anything. That means we have something and in the power we have something. So such kind of things are actually called exponent. This is called the exponent of this particular here. How an exponential or সূচকীয় ফলন look like? Anything to the power anything. And this anything, let us say this is b to the power a. Now this b, this is called base. This is called power. In English power, in Assamese it is called this is called exponent also, it can be called. So this is why this is known as সূচকীয় ফলন, ঘাতকীয়, not ঘাতকীয় actually, সূচকীয় ফলন, ঘাতকীয় can be said, but the standard term is সূচকীয় ফলন and the exponential function. Now whenever we come across the word function, so we need some variables. I mean this one solo for দরকার হবে. So in function we say, suppose represent, suppose this is fx equal to x. So such kind of we have already got. Now see this function, now here put here 1, x means what? Power is 1. So something is there, anything to the power anything to the power anything. So that means this function that we already have used, এটা আমি অলরেডি আগৰ ক্লাছবোৰত আমি ব্যৱহাৰ কৰি আহিছোঁ এনেকুৱা, তাৰ মানে এইটো এটা আমাৰ actually some kind of exponential function আছিল. Yes or no? Definitely yes. So there is some certain criteria to be exponential function. So let us discuss one by one. Suppose let us take another function, x square, x cube, x to the power 4, and so on. So these all are called actually what? Polynomial function, right? বহুপদীয় ফলন, because we already know. But these polynomial functions are some kind of exponential functions. Now if I draw the graph of this, how it looks like? So you can note it down by posting the video. How it looks like the graph. See.
If I put the value of x, it will be 0, 0, 0. If I put the value of x equal to 0, all the y will become 0. So it will 0, 0. For x, this is, we know, this will be the answer. Now see, for 0 it will be 0. This is x, y equal to x, the first one. For 1 equal to 1, for 2 equal to 2, right? Now see, for this, at 1 equal to, this is also give 1, 1, 1, everywhere 1. Now see, had it been 0.5, so answer 0.5, 0.5. But if I put y equal to x square, 0.5 square revert 0.25. So 0.54 if it is 0.5. But if it is x square, it will be something here, right? But 1 again this. So this is suppose y equal to x square. Now y equal to x cube, it will come like this. Y equal to x cube. See, for y equal to x this, y equal to x square will be like this, y equal to x cube like this, y equal to x to the power 4 will be like this, x to the power 4. So if you see, the graph will be become sharper and sharper. That means if I put the value, suppose simple observation, let us look. Suppose here this is x square, x cube, x to the power 4. How will it look like? If I put the value 0, then 0, everyone 0 we know. This is 0 means 0. 1, 1, 1, 1, 1, no problem. If I put 1. But whenever it will 2, this x will give 2. For x square it will give 4. For x cube 8. For x cube 16. Now see, याते तुम्हारे लोग के लक्ष्य पड़ा जेतियाय whenever the value of x, जब x का value increase हो रहा है, s का value increase हो रहा है, जो ग्राफ fx का value, these are all fx, right? y का value कितना increase हो रहा है? देखो y का value जब x का value 1 था, y का value 1 था, और जब x का value 2 हुआ, y का value 2 है इसमें, x में, x स्क्वायर में 1 से 4 हो गया, 1 से 8 हो गया, 1 से 16 हुआ। इसका मतलब 1 से जब 2 हुआ, वैल्यूज कितना चेंज हुआ? ज़्यादा चेंजेस नहीं हुआ। क्या हम लोगों के पास ऐसा कुछ फंक्शन है कि इतना कम में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाएगा? तो अब मैं दिखाता हूँ। सपोज मेरे पास एक फंक्शन है, सपोज लेता हूँ y इक्वल टू 10 टू द पावर x। मैंने बोला एनीथिंग टू द पावर एनीथिंग, वो एक्सपोनेंशियल होता है। तो अब देखो, अगर मैं 10 का वैल्यू में जब x का वैल्यू 1 लेता तो आंसर क्या आता? 10 टू द पावर 1 10। लेकिन जब मैं x का वैल्यू 2 लूँगा, 10 स्क्वायर 100। देखो कितना वैल्यू डिफरेंस हो रहा है। 1 से 2 में गया, वैल्यू 10 से 100 आ गया। यहाँ से 1 से 2 गया, x का वैल्यू 1 से 2 चेंज हो गया, fx में 1 से 2 ही, इधर में 1 से 4 ही चेंज हुआ, 1 से 8 ही चेंज हुआ, लेकिन इधर से तुरंत 10 से लेके 100 तक चला गया। सो सच काइंड ऑफ फंक्शन। देखो अगर इधर वो वाला फंक्शन होता 10 टू द पावर x, देखो इधर देखो 0 में क्या होता है? x का वैल्यू 0 में देने से 1 आता है, 1 में देने से, क्योंकि x का वैल्यू 0 बिठा देने से क्या होता है? 0 इज 1। अब देखो x का वैल्यू इधर अगर मैं 1 डाल देता तो 10 आ जाता, 2 डाल देता 100 आ जाता। तो मैं अगर ग्राफ ड्रॉ करूंगा, 0 में 1 आ जाता है, देखो 0 में 1 आ जाता है। वो उधर 1 1 में 1 था, 1 में 1 1 था सबका, लेकिन इधर 0 में 0 ही था, लेकिन इधर 0 में 1 आ गया, एंड 1 1 में कितना आएगा? 10 आ जाएगा, 1 1 में 10 आएगा, और ऊपर सपोज। तो इतना शार्प काम होगा ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और इधर अगर डिक्रीज कर दे x का वैल्यू कुछ और डिक्रीज कर दे, 0 से नीचे आते, 0 से नीचे मतलब नेगेटिव। अगर 10 का वैल्यू में सपोज -2 दे दिया तो 1/10 स्क्वायर, अगर 1 ही दे दो 1/-1, 1/100 हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा, इसमें तो 0.1। तो अगर मैं -1 में दिया तो 0.1 आ जाएगा, 1 के नजदीक, मतलब ग्राफ ऐसा कुछ आएगा। इसका मतलब ये जो मैंने एक्सपोनेंशियल ग्राफ बनाया, मैं इस ग्राफ को और अच्छी तरीके से दिखाता हूँ। तो अगर मैं कुछ 10 टू द पावर x का ग्राफ बनाता हूँ, तो एक तो बात है ये ग्राफ 0 से 1 ये पॉइंट आ जाता है, और इधर नेगेटिव नहीं जाएगा,
एक्स का वाई का वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होगा। आर यू गेटिंग? जो रिजल्ट आएगा, क्योंकि 10 टू द पावर तुम कुछ भी दो, आंसर 1/10 टू द पावर 100 ही होगा, तो ये अल्टीमेटली पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो इससे क्या पता चलता है, ये जो फंक्शन है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये पूरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। जो मैंने पहले बताया पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर, वो भी सम काइंड ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। लेकिन एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होने के लिए अब देखो हमारा शर्त क्या है कि सपोज b टू द पावर a, दिस इज बेस एंड दिस इज और पावर और एक्सपोनेंट। तो अब देखो एक फंक्शन को f(x) इक्वल टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन तभी बोलेंगे सपोज कुछ कांस्टेंट है, कांस्टेंट टू द पावर x, क्योंकि फंक्शन में हम x से डील करते हैं, तो कुछ कांस्टेंट टू द पावर x। ये कांस्टेंट कुछ नहीं, इसको बेस बोलते हैं, ठीक है। तो वो एक कांस्टेंट होगा, वो वेरिएबल नहीं होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। तो कुछ कांस्टेंट टू द पावर x, ये जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट का वैल्यू ऑलवेज विल टेक ग्रेटर देन, क्या लेंगे, 1 ग्रेटर देन 1। दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का बात बता रहा हूँ। तो ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, बेस क्या लेंगे हम, ऑलवेज ग्रेटर देन 1 लेंगे, ठीक है। अब देखो x का वैल्यू कुछ भी, x का वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, राइट। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का, अगर मैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का डोमेन एंड रेंज बताता हूँ, डोमेन एंड रेंज, तो क्या आएगा देखो, डोमेन होगा x का वैल्यू क्या कुछ भी ले सकते हैं, दैट मींस ऑल रियल नंबर्स। अब रेंज क्या आएगा, मैं x का वैल्यू कुछ भी बिठाता हूँ, अगर नेगेटिव बिठाऊंगा तो इधर आएगा 0, x एक्सिस को टच नहीं करेगा, मतलब ये x का जो नेगेटिव डायरेक्शन, y का वैल्यू नीचे जाने से 0 नेगेटिव होगा, राइट। तो ये y का वैल्यू है, तो y का वैल्यू कभी नीचे जाएगा ही नहीं, ये x इधर से ही आएगा, जितना भी नेगेटिव डाल दो, और इधर ऊपर तो इनफिनिटी चला जाएगा। तो इसका मतलब है x जो हमारा आंसर आएगा वो वैल्यू कभी नेगेटिव वैल्यू आएगा ही नहीं, y का वैल्यू कभी नेगेटिव आएगा ही नहीं, पॉजिटिव आएगा। तो दैट मींस रेंज इज गिव ऑलवेज पॉजिटिव। एंड देखो 0 वैल्यू भी नहीं देगा, 0 से भी नहीं गुजरेगा, क्यों, कुछ भी टू द पावर 0 दोगे तो आंसर 1 ही आएगा, ठीक है। 1 से नीचे आ सकता है लेकिन 0 नहीं आएगा। तो दिस इज द डोमेन एंड रेंज ऑफ एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। An exponential function, how it look like, constant to the power x. So you can see y equal to b to the power x or a to the power x, such that a is greater than 1. ये हमेशा याद रखो। So this is the, तो डोमेन रेंज पता चल गया, ये ग्राफ हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का। तो जो फाइनल ग्राफ है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का, how it look like, it will look like, suppose ये 0 1 है तो it will look like this। ये कर्व शार्प होगा, पूरा तेजी से उठेगा, शार्प कर्व। सो आई होप तुम्हारों के बुझी पाइसे याद है। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट यू हैव टू रिमेंबर फॉर एक्सपोनेंशियल। सो क्लियर, डोमेन रेंज पता है, एंड रिमेंबर ऑल एक्सपोनेंशियल फंक्शंस मस्ट पास थ्रू दिस पॉइंट। আমি जिमान एक्सपोनेंशियल फंक्शंस নবনাও কিয় 0 and 1 পয়েন্ট से ये पास होना ही पड़ेगा, এই বিন্দুটোৰ মাজেৰে যাবই লাগিব। So now how some looks of an exponential function, a to the power x, e to the power x, 10 to the power x, dot. So for an standard thing we will try to give this one, but now see, when we change the base to e, ये e क्या है? E is nothing but it is not you have found till now, but remember e is actually a sum of a series. This is 1 plus 1 by factorial 1 by factorial 2 plus dot. And the value of e lies between somewhere 2 and 3, and approximate result is like 2.3. So that is what constant to the power x, e का value क्या है, constant है, something like this. So 2.3 to the power x समझ लो, 10 तो constant ही दिख रहा है। तो this e actually, if you given this function e y equal to e to the power x, अगर exponential function अगर e के फॉर्म में बेस अगर e दिया हुआ है तो समझो इसको बोलते हैं नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। অসমীয়াত কি কব, নেচুরেল मतलब বাস্তব সূচকীয় ফর্ম। अगर ये e को चेंज करके 10 कर देता है, अगर ये आता है
तो 10 को बोलते हैं কমন এক্সপোনেনশিয়াল ফাংশন, অসমীয়াত ক'ব সাধারণ সূচকীয় ফলক। So this is the basic concept of exponential function. So let us move to the next part, that is our logarithmic exponential function. logarithmic function মানে घातांकीय फलन। So देखो, this logarithmic function is nothing but ये वही exponential function से ही कुछ चीजें हम लेंगे। ये this is very new to you all, this logarithmic concept. So let us see what exactly it is. So ये मैं बोला ही अभी भी बोला मैंने, ये exponential function से relate करता है। Suppose b to the power x equal to a, ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये बेस है, ये x से पावर है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब देखो इसका कुछ वैल्यू आएगा, एंड वैल्यू ऑफ एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज, मैंने क्या बोला कि डोमेन क्या होता है, r होता है, और रेंज क्या होता है, पॉजिटिव नंबर देता है, राइट। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन आंसर क्या आएगा, रेंज क्या आएगा, ऑलवेज ए पॉजिटिव नंबर। एंड हमें ये पता है बेस क्या होता है, ग्रेटर देन 1, और ए क्या होगा, ये जो आंसर आएगा ये ए क्या होगा, पॉजिटिव, राइट। ये नेगेटिव पे भी आएगा ही नहीं, अभी हम लोगों ने ये डिस्कस किया। तो अब देखो एक लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है, एक लॉगरिथमिक फंक्शन क्या बोलते हैं। देखो अगर लॉग लेते हैं, इसके ऊपर लॉग लेते हैं, ये फंक्शन बी के ऊपर लॉगरिथमिक फंक्शन हो क्या, लॉगर बी के ऊपर, बेस बी के ऊपर अगर लॉग फंक्शन लेते हैं, अगर एक को ऊपर हम लॉग बी बेस से लॉगरिथमिक फंक्शन लगाते तो हमें आंसर देगा ऑलवेज एक्स। तो दिस इज हाउ ए लॉगरिथमिक फंक्शन लुक्स। ये कहाँ से आ गया, ये बेसिकली यहाँ से आ गया कि किसी बेस पे, तो एक लॉगरिथमिक फंक्शन हमें जो आंसर दे रहा है वो आंसर क्या है एग्जैक्टली, ये लॉगरिथमिक फंक्शंस का आंसर है। तो ये आंसर जो दिया है, ये हमें क्या आंसर दिया हुआ है, कैन यू टेल मी, ये जो आंसर दिया वो ये अल्टीमेटली क्या था, वो पावर था। तो एक लॉग फंक्शन हमें क्या दे रहा है, एक लॉग फंक्शन हमें ऑलवेज गिव्स द पावर। किसका पावर दे रहा है, द पावर ऑफ द बेस। ये बेस का जो पावर है वो दे रहा है, क्योंकि इधर देखो इस पे हम लोगों ने लॉग लगाया था, बेस बी के बेस के ऊपर लॉग लगाया था, तो आंसर हमें क्या दिया था, जो बी का पावर था एक्स। तो देखो उसी तरह का अगर 2 क्यूब इक्वल टू 8, तो इसमें अगर हम ये 2 बेस पे, ये देखो ये बेस जो लिखते हैं हमेशा लॉग के नीचे हिस्से लिखते हैं, लॉग ये बेस 2 के ऊपर हम जो आंसर लिखेंगे वो 2 का पावर देगा। तो ये लॉग लगाएंगे किस पे, बेस 2 पे लगाया था, और नंबर कौन सा था, वो 8 पे लगाएंगे। तो हमेशा याद रखना, ये अगर वो इंग्लिश हम राइटिंग की तरह लिखेंगे तो लॉग के साथ ये वाला रहेगा, ये वाला हिस्सा, ये वाला आंसर आएगा, ये जो बी हिस्सा होगा बेस वाला वो नीचे जाएगा, और अगर इसमें कुछ पावर होगा तो वो ऊपर आएगा। सो दिस इज लॉग, हाउ ए लॉग लुक लाइक्स। नाउ सी अगर ये हम फंक्शन की तरह लिखते हैं, सो दिस इज, ये मैंने एक्सपोनेंशियल फंक्शन से कैसे लॉगरिथमिक फंक्शंस दिखता है वो लिखा। अब मैं देखो, हालांकि हमारा एक फंक्शंस लिखेंगे तो फंक्शंस हमेशा क्या लेता है, वैल्यू लेता है एक्स का वैल्यू। तो इस ए के जगह पे मैं कुछ एक्स लिखूंगा, इस ए के जगह पे मैं क्या लिखूंगा, एक्स लिखूंगा। तो क्या होगा, सपोज, तो ये फंक्शन हमारा क्या होता है, एफ एक्स। तो एक लॉगरिथमिक फंक्शन कैसा लिखेगा, सपोज बेस मैंने बी ही डाल दिया, इधर एक्स दे दिया, क्योंकि मुझे एक्स घुसाना है, तो लॉग मशीन में एक्स का वैल्यू डालेंगे तो आंसर क्या आएगा, तो आंसर ये सपोज वाई है। हम जानते हैं उसी फंक्शन में अगर एक्स का वैल्यू घुसाते हैं आंसर जो आता है वो वाई बोलते हैं, तो वाई इक्वल टू ये होगा। तो ये हमारा फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन ऐसा दिखता है। तो इससे अगर मैं एक्सपोनेंशियल निकाल दूँ तो कैसा होगा, देखो अगर ये नहीं लिखते हो तो ये समझो ये वाला ही एफ एक्स का मतलब वाई है, तो ये वाला वाई है, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है। अब इसको मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो क्या होता है, तो बी का पावर क्या होता है, बी का पावर वाई है, इधर एक्स हो। तो एक्स से पता चल रहा है, इससे हमें पता चल रहा है कि बी का वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1, वाई का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, तो इट मींस वाई बिलोंग्स टू क्या होगा, ऑल रियल नंबर्स।
प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, पावर कुछ भी हो सकता है। तो अब देखो x का वैल्यू क्या है, जो आंसर आएगा इसका आंसर क्या देता है, ऑलवेज पॉजिटिव नंबर। तो x बिलोंग्स टू क्या होगा, पॉजिटिव नंबर। इससे ये पता चल रहा है जो लॉग फंक्शन है, लॉग फंक्शंस विथ रेस्पेक्ट टू b, अब कुछ नहीं दिया, इसका डोमेन क्या होगा, x का x डोमेन है, तो x क्या हो रहा है, पॉजिटिव नंबर। तो पॉजिटिव नंबर से क्या होगा, ऑल रियल नंबर देगा, y का वैल्यू कुछ भी आ सकता है। तो दिस इज द डोमेन एंड रेंज ऑफ अ लॉगरिथमिक फंक्शन। तो यही सिंपल कॉन्सेप्ट था। जो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में अगर लॉग लगाएंगे तो कैसा दिखेगा, सिंपल सी बात है। अगर हमारा ये है, देखो एक ही चीज याद रखना, जो बेस है बेस ही रहेगा, लॉग का भी बेस वही आएगा। जो आंसर था वो जाके लॉगरिथमिक होगा और जो पावर है वो आंसर आएगा। लॉग अगर लेते हैं, जो पावर ऑफ द एक्सपोनेंट है वो जाके आंसर हो जाएगा, और जो उसका आंसर था वो उसके ऊपर लॉग लगाएंगे, वो रिस्पेक्ट टू बेस। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस टू लॉगरिथमिक फंक्शंस। कैसे खातांक के फलन हम निकालते हैं। अब देखो इस चीज से हम कुछ निकाल सकते हैं, जैसे कि पहले भी बोला था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शंस था, और एक क्या था, नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शंस होगा। तो वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, वो बेस के ऊपर। अगर ये बेस के जगह पे देखो, लॉग ऑफ बेस अगर ई आ गया, ये हो गया, ये अगर लॉगरिथमिक फंक्शन से, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा तुम्हारा ई है, तो क्या कहेगा, नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन। अगर इसमें 10 होता तो कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शन। तो पहले की तरह बेस के ऊपर डिपेंड करेगा। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, पॉज द वीडियो एंड नोट द राइटिंग्स, ओके। अब देखो इसमें क्या होगा कि अगर बेस बी एक्स था तो ये वाई था, कुछ ऐसा। इसके ऊपर हम एक चीज जानते थे, बी ऑलवेज ग्रेटर देन 1, एक्स बिलोंग्स टू, ये जो एक्स होगा क्या होगा, एक्स पॉजिटिव रियल नंबर होगा, और वाई का वैल्यू होगा वो कुछ भी हो सकता है, डोमेन ये होगा एक्स प्लस आर प्लस होगा, राइट। ये पता था। इससे हम ये भी निकाल सकते थे कि बी टू द पावर वाई इक्वल टू एक्स, राइट। तो अब देखो इस बेस में अगर मैं बोला क्या आएगा, अगर ई आता है तो लॉग ई टू द पावर बेस, ये वाला क्या होता है, इसको कहते हैं हम नेचुरल लॉगरिथमिक, नेचुरल लॉग। अगर लॉग बेस 10 होता है तो इसको बोलते हैं हम कॉमन लॉग, साधारण घातांक को, एंड दिस इज कॉल्ड एज नेचुरल लॉगरिथम, ओके। नाउ सी, ग्राफ बनाने से पहले एक चीज मैं वो बताना चाहता हूँ। देखो ये जो नेचुरल लॉगरिथम है, लॉग ऑफ ई एक्स, ये नेचुरल लॉगरिथम है। इसको हम जनरली एल एन लिखते हैं, एल एन एक्स। आई थिंक ये तुम लोग को फिजिक्स में पढ़ा होगा, फिजिक्स में तुम लोग पढ़ चुका होगा एल एन क्या है। एल एन एक्स लिखते हैं, या फिर ब्रैकेट में एक्स, क्योंकि एक्स तो वेरिएबल है, वो लॉगरिथम में एक फंक्शन है, तो उसके अंदर एक्स जाएगा, ऐसे भी लिखते हैं। लेकिन तुम लोग का एनसीईआरटी बुक में क्या है, एनसीईआरटी बुक में तुम लोगों का लॉग ऑफ नेचुरल लॉगरिथम को ऐसे लिखा है, सिंपल लॉग एक्स दिया हुआ है। बेस जनरली नहीं दिया हुआ है। तो बेस अगर नहीं दिया होगा तो ऑलवेज थिंक दैट द बेस क्या है, वो नेचुरल है, ई है, तब जाके हम लोग आसानी हो। क्लियर? सो लेट अस discuss the graph and observe some properties. तो देखो अभी हम एक से एक ये वाला लेते हैं, कॉमन लॉगरिथम लेते हैं, साधारण घातांक को, ये कॉमन लॉगरिथम फंक्शन। देखो बेस 10 है, ठीक है। अगर x का वैल्यू मैंने 1 लिया तो क्या आंसर आएगा, x का वैल्यू 1 ले लिया, तो देखो इससे हमें क्या पता चलता है, ये वाला का आंसर क्या है, 10 टू द पावर y इक्वल टू x, राइट। x का वैल्यू अगर 1 लेता हूँ, मैंने बोला x का वैल्यू 1 लेता हूँ, तो 10 टू द पावर y होगा। तो अब बताओ ये कब होता है, 10 टू द पावर 0, तो y का वैल्यू क्या होगा, 0। इसका मतलब x का वैल्यू 1 होता है तो y का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। वो सब केस में होगा, इसमें अगर हुआ इसमें भी होगा, y टू ई टू द पावर y इक्वल टू x, x 1 अगर होगा तो ये क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर 0, तो y का वैल्यू 0 हो गया। सिमिलरली उसके तो ऑल लॉगरिथमिक फंक्शन जितना भी है
दे मस्ट पास थ्रू द पॉइंट 1 0। अब इसका जो ग्राफ होगा, अब ये 10x का ये ग्राफ कुछ इस तरह के होगा, ये इधर इस लाइन को टच नहीं करेगा क्योंकि x के पॉजिटिव डायरेक्शन में रहेगा, क्योंकि x का वैल्यू क्या पता है, x डोमेन है, तो x क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव नंबर, तो ये x का भी नेगेटिव होगा ही नहीं, राइट। तो ये वैल्यू ऐसा हो, तो y का वैल्यू नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, राइट और रॉन्ग बताओ। ये y का पॉजिटिव वैल्यू है, इधर y का नेगेटिव वैल्यू है, राइट और रॉन्ग, क्योंकि y कैन बी एनी रियल नंबर। तो देखो ये होगा, ये वाला होगा log ऑफ 10 बेस x। अगर बेस को हम थोड़ा कमा दिया सपोज, तो ये वाला फंक्शन ऐसा दिखेगा log ऑफ x। अगर फिर हम कर देते हैं log ऑफ 2x, तो ऐसे जितना हम बेस को डिक्रीज करेंगे, ये कर्व कितना ही शार्प होता जाएगा। सो इट इज हाउ ए लॉगरिथमिक फंक्शन लुक लाइक्स। सो नाउ लेट अस मूव टू द प्रॉपर्टीज ऑफ सम लॉगरिथमिक फंक्शन। कुछ हम प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे लॉगरिथमिक फंक्शंस का, ठीक है। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। सो अभी बात करेंगे कुछ प्रॉपर्टीज के ऊपर, ठीक है। किसका प्रॉपर्टीज, लॉगरिथमिक फंक्शंस के कुछ प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी एक चीज छूट गया, वो थोड़ा डिस्कस कर। देखो अगर लॉगरिथमिक फंक्शन e टू द पावर x इक्वल टू y है, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या आ जाता है, e टू द पावर y इक्वल टू x। अब देखो इन दोनों का ग्राफ अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो ग्राफ कैसा दिखेगा, ये अगर हमारा y इक्वल टू x है, ये तो पूरा 45 डिग्री एंगल में जाएगा थ्रू द ओरिजिन, राइट, y इक्वल टू x। तो अभी जो लॉगरिथमिक फंक्शन हम कैसा पढ़ा, इधर एक पॉइंट रहेगा, क्या पॉइंट रहेगा 1 0, इधर एक क्या पॉइंट रहेगा 0 1। हम जानते हैं ऑल लॉगरिथमिक फंक्शंस विल पास थ्रू दिस पॉइंट, जितना भी लॉग फंक्शंस होगा वो पास थ्रू दिस पॉइंट होगा, ठीक है। ये फंक्शन है log ऑफ x, y इक्वल टू log ऑफ x। और जितना भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, हमें पता है वो वैल्यू क्या नहीं देता, नेगेटिव वैल्यू नहीं देता, पॉजिटिव वैल्यू देता है। और वो ऑल एक्सपोनेंशियल फंक्शंस विल पास थ्रू द पॉइंट 0 1, ये हम जानते हैं। तो दिस इज सपोज y इक्वल टू x इक्वल टू, ये इसके लिए है। अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y इक्वल टू हम फंक्शन e टू द पावर x, नो प्रॉब्लम। So these two functions, if we look into it, these are the mirror image of one another. माने प्रतिबिंब होगा। If this line is the mirror, then they will look like exactly as mirror image of this function. So exponential function and logarithmic functions are mirror image of each other, such that the base should be same. Base same होना चाहिए। और the mirror image कौन सा लाइन पे होगा, y equal to x. So this is all about your logarithmic and exponential functions. So let us discuss the properties quickly of the logarithmic functions. The properties of logarithmic functions. The first property is the change of base. ভূমি পরিবর্তন বিধি, ভূমি পরিবর্তন বিধি। So what is it? Suppose I have log of, suppose मैंने base b दे दिया, ये a, तो we want to change the base. So how can we do? So this property tells us if we change the base, it will look like this: log of a by log of b. As I told you, if I don't write the base, so what is the base? You will always tell this, the base is b. So this is the first rule of changing the base. Second rule, this is product rule. Second rule is product. Suppose log of, suppose I have m into n. So if I have two functions that are product and we have taken the log of that, then we can write it as a sum of this, log of m in log of n. Had it been like this,
अगर इससे ज़्यादा होता इस प्रोडक्ट में, सपोज एम इंटू डॉट 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 इंटू जेड, सो दैट एम प्लस एन डॉट 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 प्लस लॉग ऑफ ई टू जेड। अगर ज़्यादा होता तो ज़्यादा तक प्लस होता जाएगा, जितना भी क्वांटिटी इंटू होगा सबका हम लॉग लेके प्लस कर देंगे। सो दिस इज द प्रॉपर्टी, सो बेसिक यू जस्ट रिमेंबर दिस। कभी कभी स्टूडेंट्स क्या होता है, मेरा पहला आगे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, स्टूडेंट्स लोग कहाँ गलतियाँ कर बैठते हैं। सपोज उन लोगों ने ये मिल गया, सपोज लॉग ऑफ ई एम प्लस एन ऐसा सपोज मिल गया, तो वो लोग सोचता है तो प्लस हो गया तो ये इंटू हो जाएगा, लॉग ऑफ ई एम इंटू एम कर देता है, तो ये टोटली रॉन्ग है। कभी ऐसा मत करो। कभी कभी आ जाता है आंसर में ऐसा, तो तुरंत सोचता है ये तो ये था, लेकिन नहीं, ये एम प्लस एन का था, इंडिविजुअल था, लॉग इसमें था इसमें था, तब जाके इन दोनों को इंटू कर देते हैं। तो ये वाला पूरा ध्यान में रखो। अब देखो ये वाला तुम लोग नोट डाउन कर लो। उसके बाद एक प्रॉपर्टी था लॉग ऑफ ई एम बाई एन का, तो इसमें क्या करते हैं, लॉग ऑफ ए एम माइनस लॉग ऑफ ई एन, ये बताए प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी 4 क्या बता रहा है कि लॉग ई के, सपोज लॉग ई एम टू द पावर एन, तो ये जो क्वांटिटी है इसके ऊपर अगर कुछ पावर है तो वो पावर लॉग के सामने आ जाता है, एम लॉग ई एम। अब कैसे पढ़ेंगे, लॉग एम टू द बेस, ये पढ़ने का तरीका ऐसा है, एम लॉग एम टू द बेस, लॉग एम टू द बेस, बेस को बाद में बोलते हैं, ये पढ़ने का तरीका है। सो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। और एक चीज है, लॉग ऑफ ई टू द पावर बेस, अगर बेस और ये दोनों सेम है तो ये रिमेंबर आंसर इज ऑलवेज 1। ये कैसे होता है, देखो अगर लॉग उठा देंगे तो क्या होगा, देखो एक चीज याद रखो, लॉग को अगर हटा देते हैं तो क्या होता है, ई टू द पावर क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा, तो यही हो गया ना, तो लॉग लेंगे तो यही होगा। और एक चीज देखो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, ई टू द पावर 0 क्या होगा, 1, तो इस पे लॉग लेंगे तो क्या होगा, इस पे 1, आंसर पावर वाला आंसर हो जाता है, तो इसमें क्या है, तो लॉग ऑफ 1 आंसर क्या होता है, लॉग ऑफ 1 0, तो लॉग ऑफ 1 बेस कुछ भी हो, और कुछ भी हो वो बेस के ग्रेटर देन 0 होना, ग्रेटर देन 1 होना है, राइट, तब जाके आंसर क्या होगा, 0 होगा। ये भी एक प्रॉपर्टी से। और एक प्रॉपर्टी याद रखना, ई टू द पावर लॉग ऑफ ई सपोज कुछ भी है तो आंसर वो कुछ भी आ जाएगा, इधर जो रहेगा, अगर ये वाला बेस और ये लॉगरिथम का बेस दोनों बेस अगर सेम होता है तो आंसर वो वाला डायरेक्टली आ जाता है। सो दिस इज जस्ट नोट, पॉज द वीडियो एंड नोट द प्रॉपर्टीज। तो अभी प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे हम डिफरेंशिएशन मतलब डिराइवेटिव्स, ये जो प्रॉपर्टीज पढ़ाते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और एक पूरा लॉगरिथम फंक्शन। राइट, एंड रिमेंबर अगर सिर्फ log x दिया हुआ है तो हम तो बुक में तुम log x मिलेगा तो उसका बेस क्या होगा, e होगा, राइट। तो अभी देखो इसका अगर ddx करते हैं, ddx ऑफ a टू द पावर x, तो हमेशा याद रखना ये आंसर क्या आता है, a टू द पावर x log, ये रहेगा x टू द बेस e रहेगा, सॉरी ये x नहीं, x ये e रहेगा, a रहेगा, ये वाला आंसर। अगर e दे दिया डी डी एक्स ई टू द पावर एक्स होगा, तो सिमिलरली ई टू द पावर एक्स लॉग ऑफ ई टू द पावर क्या आएगा, ई आएगा, और ई टू द पावर ई हमें अभी फॉर्मूला मिला कि दोनों अगर सेम होता है तो क्या होता है, 1 होता है, तो ई टू द, तो डी डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स आंसर क्या हो गया, ई टू द पावर एक्स। ये मैंने क्लास 11 में पढ़ा था कि ई टू द पावर एक्स को अगर डिफरेंशिएट करोगे तो ई टू द पावर एक्स ही आएगा, और हम बाद में फिर से पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन, उसमें इंटीग्रेशन भी करते हैं तो ई टू द पावर एक्स ही निकल आएगा। तो इसका क्या होगा, टी डी एक्स ऑफ क्या टेन टू द पावर एक्स ऑफ लॉग ऑफ ई 10 आएगा, क्लियर। तो आप आते हैं इसके ऊपर, ये जो नेचुरल लॉगरिथम है इसका डीडीएस लेने से क्या होगा, बुक पे तुम लोग को log x मिलेगा, तो log x मतलब वो बेस क्या होगा, नेचुरल होगा,
ये होगा तो डी डी एक्स ऑफ log x क्या होगा प्लस दिस इज 1 by x. So this is the basic properties of the concepts of this exercise 5.4. So now let us solve the problems of exercise 5.4. So as I told earlier also, I am not going to solve the exercise fully. I just will solve one or two problems, then you will clearly know from it that how is the answer. It's so easy. Because concept I have given everything. So now if we solve the problem, it will be very simple. So see now. One question number 1. So we have asked to find the d dx of e to the power x by sin x. See, first of all, the thing is that this is u by v function. और क्या होगा पॉलिनोमियल फंक्शन. दिस इज रेशनल फंक्शन. सो अगर ऊपर कुछ नीचे कुछ है तो उसका डेरिवेटिव हमें पता है. एक फॉर्मूला था u by v इज इक्वल टू u dash v minus u v dash by v square. सिंपल वो लॉजिक लगा क्या होगा पहले वाला ऊपर वाला फंक्शंस का डिफरेंशिएशन. सो डी डी एक्स ई टू द पावर एक्स इनटू v sin x माइनस u मतलब e to the power x इनटू डी डी एक्स नीचे वाला sin x डिवाइडेड बाय दिस नीचे वाला का स्क्वायर sin x का स्क्वायर. तो अब क्या होगा डी डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स अभी पढ़ा. ई टू दी पावर एक्स का डी डी एक्स क्या होता है. ई टू दी पावर एक्स होता है sin x माइनस ई टू दी पावर एक्स. डी डी एक्स ऑफ sin x क्या होता है cos x. सो sin इसका आंसर sin स्क्वायर x. तो अभी यहाँ से क्या कुछ नहीं कर सकते. यही आंसर है. तो ई टू दी पावर एक्स को कॉमन ला लो. अगर ई टू दी पावर एक्स को कॉमन लाया तो क्या आएगा sin x माइनस cos x. So this is the answer. So simple. तो इसी तरह ट्राई टू सॉल्व इट आउट. और मैं डिस्क्रिप्शन में आंसर दे दूंगा. अगर कुछ हेल्प चाहिए तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी. सो लेट अस मूव सॉल्व अनदर प्रॉब्लम दैट इज रिलेटेड टू सपोज लॉग रिलेटेड क्या करेंगे. क्वेश्चन नंबर 8. दैट्स इट. या फिर कुछ और मैं एग्जांपल से लेता हूँ. एक क्वेश्चन दिया हुआ है साइन ऑफ लॉग एक्स. किसका लेता डी डी एक्स ऑफ इसका लेता. तो डी डी एक्स ऑफ इसका क्या होगा साइन ऑफ लॉग. देखो एक तो साइन एक्स का डी डी एक्स क्या होता है कोस एक्स. तो इधर साइन एक्स तो नहीं है लॉग एक्स तो कोस ऑफ लॉग एक्स होगा. अब देखो हालांकि ये चेंज रूल अप्लाई करना पड़ेगा. ये तो डायरेक्ट फंक्शन एक्स नहीं था तो इसके ऊपर log x के ऊपर फिर से डी डी एक्स लगाना पड़ेगा. डी डी एक्स log x. अब ये वाला हो गया cos log x. डी डी एक्स ऑफ log x अभी मिला क्या 1 by x. सिंपल आंसर. क्या है आंसर क्या है cos log x by x. So I hope the concept is clear. अगर फिर भी कुछ डाउट है तो let us take another example. In your book, question number 8. So note it down. Okay, pause it and note it down. तो ये लास्ट वाला कर लेते हैं. इसमें क्या है log of x. तभी देखो log of x क्या होगा. इसमें डी डी एक्स लगा यही तो करने दिया. log of का आंसर क्या होता है 1 by x. log x का है 1 by x. तो log x में क्या है log x. तो ये वाला नीचे आएगा करेक्ट. अब जाके ये तो चेन रूल अप्लाई हो गया क्योंकि ये x नहीं था इसलिए फिर इसमें डी डी एक्स लगेगा. डी एक्स log x 1 by log x into डी डी एक्स ऑफ x. log x क्या होता है 1 by x. तो आंसर क्या आएगा 1 by x log x. Same answer. So this is what about our exercise 5.4. So thank you.